on we can. Yeah. So today morning when I went to gym, that time I was listening to Shiv Khera. Do you know Shiv Khera? Okay. Yes, yes. I just you can you can win ना उनका एक बुक है. You can win. Yes, yes. वो 15-20 साल पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी, You Can Win. Now he has written Okay. one more book, You Can Achieve More. Okay. Yeah. So Okay. we have got opportunity to listen this kind of people, those who are present on earth and those who are not present on earth. So we can read about them and we can listen also to them. Correct. So there are some great speakers also. We can listen from them. I will send you one list किसको आप सुन सकते हैं. ठीक है. अच्छा. तो when we talk about our books and all, you know, you can have quality books if you have very good reading, Correct. because you can know about people, about how they are getting success in life and everything. तो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमारे में आएगा. Correct. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि if you have to take some decision about anything, for example, if we are working in a HDFC and suppose there is some opportunity in ICICI Bank, whether you should join that organization or you should be in a HDFC only. So if you are taking decision today, it will be your decision. But if you have read some 100, 200, 300 books, then you are taking some decision. So that decision is not yours. That decision is from eminent authors, Hmm. their experience. You have gained some experience and then you are taking decision. Correct. So you have got the power of those writers. Okay. तो इसलिए इन लोगों को मतलब पढ़ना जरूरी है, उन लोगों की बातें सुनना जरूरी है. ठीक. So when you are writing after listening so many people, your book will have quality. Hmm. Yeah? Okay. दूसरा कि सपोज आप समोसा बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, Hmm. तो समोसा की आप रेसिपी जानते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे डालना है, उसको किस तरह से तलना है और कैसे पकाना है, वो सब आपको अगर जानते हैं तो अच्छी तरह से पका पाएंगे. Correct. तो Correct. इन द सेम वे इफ यू आर राइटिंग बुक्स, तो बुक अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन देर आर ingredients of marketing. Hmm. So marketing is not sales. Sales and marketing are different. Correct. So if you are knowing something better in marketing, then you can better sell your books. Acha. So I want to ask one question. Do you write blogs, articles? नो. मैं लिखता नहीं सर. मुझे मतलब मैं लिखना चाहता हूँ या जैसे कैसे होता है तो वो अगर होगा तो मैं वो भी मतलब लिखना चाहूंगा. Okay. So I will recommend that you can write articles, at least 2 to 3 articles in a month. ओके. I write one article every month. आपने देखा होगा, मैं ओके. उसकी लिंक भी आपको भेजता हूँ. जी जी मैं पढ़ता हूँ सर. मैंने कल भी पढ़ा था आपका. हाँ. वो पूरा मैंने पढ़ा था कल. तो आपने 5 M's के बारे में बताया था. हाँ जी. yeah. So today I have written my 200th article on ओके. Medium. तो ओके. हफ्ते में एक बार लिखता हूँ. अच्छा. ओके. तो ओके. उससे फायदा क्या है, आप बताओ. आर्टिकल लिखने से what is बेनिफिट ऑफ आर्टिकल? एक तो जैसे लोग पढ़ेंगे तो दे विल नो मोर अबाउट यू कि अबाउट योर विजडम एंड अबाउट दैट you have some intellect and they will connect more in future also with your name. Okay.
Anything else? By writing article, you are actually giving back to the society what you have learned. You are actually offering your knowledge, your experience to other people, so that they can also apply that knowledge and experience in their lives. Very good, very good. Okay. So, are you able to see my screen? Yes, sir. अच्छा, तो ये मेरा मीडियम का मैं लॉग इन किया अभी। तो इधर देखो, मेरी किताबें दिख रही है। फॉर एग्जांपल, मैं आई विल क्लिक हियर। ये मेरा मीडियम का प्लेटफॉर्म है, बराबर। जी। तो एक मेरी ये किताब है, एक ये है, एक ये है, एक ये सब किताब है, बराबर। तो आई एम वेरीफाइड राइटर ऑफ मीडियम। ओके। तो ये किताबें इधर दिख रही है ना, वो इंडिया के अंदर कोई भी आदमी लो में परचेस कर सकता है, मतलब वेरी विथ लो कॉस्ट। जैसे अच्छा। फॉर एग्जांपल ये किताब है, तो ये किताब है ना, वो अमेरिका में 1500 रुपया 1200 रुपये में बिकती है मेरी, बराबर। जी। लेकिन इफ somebody is clicking here, rewire your brand, सपोज मैं क्लिक किया, तो it will go to the local publisher, it will be available for 250 rupees only। अच्छा। अच्छा, तो ये किताब अमेजोन में है, बराबर। लेकिन अमेजोन में इंडिया में भी है, वो इंडिया के अंदर से ही मिलेगा, बराबर। ओके। तो एक ये फायदा हुआ कि ये लोग है ना सीधा सीधा मेरी किताबें इधर से खरीद सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आई विल टेल यू समथिंग मोर। नाउ आई एम गोइंग टू माय स्टोरीज। स्टोरीज में मैंने जो आर्टिकल लिखा है, ये मेरा 200 आर्टिकल, बराबर। मैं इधर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये मैं मेरा आर्टिकल तो आप पढ़ते ही हैं, सबका आर्टिकल थोड़ा थोड़ा कभी रिलेटेड पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको जी। अलग तरीके से बताता हूँ। ये आर्टिकल आप बोल रहे थे कि 5M वाला है, वो आपने जी। पढ़ा था, बराबर। मैं इधर क्लिक करता हूँ, बराबर। अच्छा, अभी एक परसों एक रील थी फेसबुक में, उसमें किसी ने 5M के बारे में बताया था कि मैनर्स क्या होता है, मतलब माउथ क्या होता है, ये सब। तो मैंने सीधा सीधा आर्टिकल लिख दिया, बराबर। ओके। ओके। तो एक दूसरा चीज है कि कैन यू लिसन दिस आर्टिकल। आप जैसे पढ़ते हैं, हाँ, हाँ। तो इधर एक बटन है, हम्म। आप सुनना, अभी आवाज सुनना थोड़ी, 1 मिनट। The Symphony of Success, orchestrating life with the 5 M's. In the pursuit of personal growth and success, mastering various aspects of life is crucial. Among these aspects, controlling the 5 M's, mouth, mind, mood, manner, and money. है ना। तो फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल, आप वॉक में जा रहे हैं, आपने हेडफोन लगाया हम्म। है और इसमें क्लिक किया, तो यू कैन लिसन दिस आर्टिकल। करेक्ट, तो करेक्ट। मैं आर्टिकल पढ़ता नहीं हूँ, मैं आर्टिकल सुनता हूँ हमेशा, बराबर। ओह, अच्छा। अच्छा, दूसरा कि अभी देखिए, ये माउथ लिखा है, जी। MOUTH माउथ, बराबर। इसके बाद माइंड लिखा है, इसके बाद हम्म। मूड लिखा है, इसके बाद मैनर लिखा है, इसके बाद मनी लिखा है, बराबर। अभी एक मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि ये जो माउथ है ना, इसमें मैंने क्लिक किया, मेरी किताब आई। हम्म। अभी मैंने माइंड में क्लिक किया, मेरी किताब है। अभी मैंने मूड पे क्लिक किया, मेरी किताब आई। यस। अभी मैंने मैनर्स में क्लिक किया, मेरी किताब आई। मैनेजेरियल बिहेवियर के बारे करेक्ट, में मैंने एक किताब करेक्ट, लिखी, वो करेक्ट, करेक्ट। बेस्ट सेलर हुई। और लास्ट में मनी, ये मनी में मैंने क्लिक किया।
मेरी किताब आई, मास्टर योर मनी माइंड। आई एम डूइंग नथिंग बट मार्केटिंग। इफ समबडी इज रीडिंग, गलती से क्लिक कर दिया तो उसको मेरी किताब दिखाई देगी, बराबर। तो बोलेंगे सर करेक्ट। आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, लोग बोलेंगे, लेकिन क्लिक करेंगे ना तो मेरी किताब आएगी। तो उसको लगेगा कि यार ये तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है, आई शुड परचेस। वो कभी क्लिक कर देता है, तो उसमें मेरे को कोई खर्चा नहीं है, आई डोंट स्पेंड मनी, और लास्ट में मेरी करेक्ट। किताब दिखाई देगी इधर, बराबर। तो सपोज इधर क्लिक किया, अगेन इट विल गो टू अमेजोन पेज। तो इससे एक एल्गोरिथम बनता, बराबर। अच्छा, करेक्ट। करेक्ट। इसके बाद इधर एक लास्ट टाइम मैंने जो बताया था कि ज्वाइन ऑथर फॉर लिटरली हेवंस, ऐसा लिखा है। वो कोई क्लिक करेगा, इट विल गो टू माय वेबसाइट, और वेबसाइट में जाके वो देखेगा कि ये नीचे क्या है, तो लिटरली हेवंस। तो इधर मेरा एक लैंडिंग पेज है, उधर वो नाम लिखेगा, ईमेल एड्रेस और गेट इन, क्लिक करेगा तो सीधा सीधा मेरा कन्वर्ट किट में, मेरा ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम में सीधा आएगा। तो एक आर्टिकल है, आई विल क्लोज दिस ऑल, ओनली सिंगल आर्टिकल, एंड पीपल, देर आर सम मोर देन 500-600 इम्प्रेशंस। ये लिंक्डइन में डाल दिया और सभी पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई मेरा बुक के ऊपर जाता है, कहीं कोई इधर उधर जाके, अगेन दे विल कम टू माय बुक्स ओनली। तो सिर्फ एक आर्टिकल लिखने से, समटाइम्स यू आर सेलिंग वन और कपल ऑफ बुक्स, करेक्ट। तो इसलिए आर्टिकल लिखना जरूरी। तो आप medium.com में आप रजिस्टर कर लेना, इट इज फ्री, कोई उसमें पैसा नहीं जी। है, जी, बराबर। मैंने किया तो हुआ सर, उसमें मैंने किया है सर। हाँ हाँ, तो अच्छा, तो जैसे हम लोग एक बुक का चैप्टर लिखते हैं, उसी तरह से ही आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है? तो मैंने एक बीच में एक आर्टिकल लिखा था कि हाउ टू राइट आर्टिकल, ऐसा एक ओके। तो फॉर एग्जांपल कभी भी कुछ आइडिया आ जाता है ना, तो मैं सीधे सीधे आर्टिकल लिख देता हूँ। और कभी बहुत बड़ा आइडिया आता है ना, तो सोचता हूँ आर्टिकल क्यों लिखना है, आई विल राइट बुक, तो बुक लिख देता हूँ। अभी बीच में जब एक्सरसाइज कर रहा था जिम में, तो उधर लिखा था डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। तो उससे मेरे को आइडिया आया, तो मैंने नेवर सेटल करके एक किताब लिख दी, बहुत अच्छी चल रही है अभी, 20-25 किताब बिक गई। तो यू गेट सम आइडिया, फ्रॉम आइडिया टू आइडिया। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको आज एक बताता हूँ। आप रोज क्या करना, अर्ली मॉर्निंग जब आप ब्रश ब्रश करके फ्रेश हो जाते हो और जब कंप्यूटर में बैठते हो ना, एक एक्सेल में आप क्या करना, एवरी डे यू राइट डाउन 10 आइडियाज। ओके। वो आइडिया कैसे होंगे कि ओके, ये आज की तारीख है 8 अप्रैल 2024, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके 8 लिखा। तो आइडिया क्या है कि एनी आइडिया, दैट में बी वेरी सिली आइडिया, बराबर, उसको लिखना है आपको कि मैं कुछ ना कुछ आइडिया कि ओके, मैं आई वांट, आई विल राइट वन आर्टिकल, देन ओके, आई हैव टू राइट वन बुक ऑन communication, then I will learn about book of marketing, I will learn uh, graphic design। तो ऐसे आइडिया सब लिखना। तो लिखना है ओके। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीधा स्ट्रिक्टली करना ही, ओनली राइटिंग आइडिया। ठीक है। उसका मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। यू आर राइटिंग 10 आइडियाज एवरी डे, तो हाउ मेनी आइडियाज इन अ मंथ? 300। 300 आइडियाज, बराबर। अच्छा, तो उसमें से मंथ में सिर्फ 4 आइडिया आपने, बेस्ट आइडिया है ना, वो निकाला अलग से, तो एक साल के अंदर आपके पास 50 आइडिया हो जाए, बराबर। एंड दैट आइडिया समटाइम्स इट विल चेंज योर लाइफ। आपको छोटा छोटा लगेगा, लेकिन जो
ये जामनगर में एक रिफाइनरी है जिसका बोलते हैं रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उधर आरपीएल बोलते हैं इसको, रिलायंस में उसका टाउनशिप है। उधर मैं मैनेजर था फॉर 6 years इन एसबीआई, देयर इज अ ब्रांच। तो उसमें धीरू भाई अंबानी नाम सुना होगा आपने। जी जी। तो उसने सोचा कि ये यार ये एरिया में एक रिफाइनरी करना चाहिए, एक आइडिया मन में आया। सीधा सीधा ब्लूप्रिंट निकाला और इसके बाद काम करना चालू किया। 5 साल के बाद उधर एक अच्छी रिफाइनरी हो गई। तो एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन प्रेजेंट इज फर्स्ट हैपनिंग इन द माइंड। करेक्ट पहले करेक्ट। आइडिया आता है, इसके बाद उसका ब्लूप्रिंट पेपर में आता है, और इसके बाद रियल में आता है। हम्म। शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो पहले सोचा कि यार ऐसा बनाऊंगा मुमताज के पीछे। इसके बाद फिर वो आइडिया ने उसको कागज पे लिखा, मतलब कलम से लिखा, और इसके बाद रियल में। तो 3 बार बनता आइडिया, ब्लूप्रिंट एंड रियल। हम्म। तो कोई भी चीज है, अगर करेक्ट आप अभी आप सोचेंगे, ये जो आइडिया बता रहा हूँ ना, उस आइडिया में समटाइम्स योर लॉट ऑफ बुक्स विल बी जनरेट। करेक्ट। तो एक ये हो गया, बराबर। दूसरा कि you have to utilize your time in such a way that properly you are using your time, whether you are in office or सॉरी। you are at home। अच्छा, बैंक में है सपोज आप, बराबर। तो बैंक में आपको आपके काउंटर पे बैठते हो, तो आपको बहुत सारा आइडिया होगा कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो कभी कभी अच्छी चीजें छूट जाती हैं, और जो मामूली चीज है वो कर लेते हैं, और वो अच्छी चीजें रह जाती है। इसलिए क्या करना, घर में हो या फिर ऑफिस में, you write down the daily goals or daily what you have to do। तो नंबर 1 में लिख दिया कि यार आज मेरे को एक आर्टिकल लिखना है। नंबर 2, न्यूज़पेपर घर में है फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर पढ़ना है। नंबर 3, अरे वो दूध भी लाना है, राइट डाउन। नंबर 4 कि किताब का एक चैप्टर लिखना है। नंबर 5 एक ग्राफिक डिजाइन करना है। नंबर 7, ऐसे आपने 10 आइडिया लिख दिया, बराबर। फिर उसको सीरियली करना है कि ये 10 चीज में से पहला कौन सा करूं, हम्म। सेकंड कौन सा करूं, थर्ड कौन सा करूं, फोर्थ कौन सा करूं। इसके बाद 7, 8, 9, 10 उसके अंदर न्यूज़पेपर आ जाएगा, पढ़ना है। अच्छा, एक दिन आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा। न्यूज़पेपर के अंदर कश्मीर में 2 लोग मर गए, एक्सीडेंट ये हो गया, ये पॉलिटिशियन ने उसको ये कह दिया, इसी इसी चीज का है, बराबर। दैट यू कैन इग्नोर समटाइम्स कि भाई ये 7वां 8वां या 10वां है और नहीं हम्म। पढ़ा, कोई बात नहीं। लेकिन करेक्ट। इम्पोर्टेंट चीज जो 3 4 है वो आपने कर ली। तो बड़ी बड़ी चीजें है वो पहले करना है, छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो लास्ट में करना है। ठीक है। इन दिस वे यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड, हम्म। बराबर। अच्छा, और अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका जो जीमेल अकाउंट है, जी। उसमें आपके पास कितना कॉन्टेक्स्ट, अंदाज से 10 15 20 कांटेक्ट 25 ईमेल 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 एड्रेस। आईडीज। हाँ, इतना तो इससे ज्यादा ही होगा सर, अराउंड 30-40 होगा। ओके। तो हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर राइटिंग टू देम, कभी उसको ईमेल करते हैं आप? नहीं। ओके। तो अभी आपको क्या करना है कि जितने भी कॉन्टेक्ट है उसको आपको एक लिस्ट बनाना है, बराबर। ओके। और कोई ना कोई तरीके से, अच्छा, सपोज अभी मैं क्या हुआ कि कल मैं स्टार बाजार में गया था। वो टाटा की है, उसमें सभी चीजें मिलती है। तो जी। एक 60 70 years ओल्ड मैन, ही टोल्ड यार थोड़ा हेल्प करोगे, ये बैग में थोड़ा वजन वाला है, इसमें डाल दो। मैंने डाल दिया। तो मैं बोला कि
अरे सर आप रिटायर हो गए, कहाँ कहाँ से रिटायर हुए? अरे मैं LIC एजेंट हूँ। ओके। तुरंत उसने कार्ड मेरे को पकड़ाया। तो मैंने बोला कि आई वॉज ऑल्सो डूइंग लाइफ इंश्योरेंस, आई वॉज MDRT। तो फिर बहुत आपसे खुशी हुई मिलके, ये हुए, उसने कार्ड दिया, उसने ईमेल एड्रेस था, फोन नंबर था, मेरे को कांटेक्ट मिल गया। बराबर। आप हम्म। अभी क्या करते हैं? मैं बोला मैं किताबें लिखता हूँ। अच्छा कौन सी किताबें? मैं बोला सेल्फ हेल्प। अरे यार हमको भी बताइए। तो मेरे को तो एक रीडर मिल गया, है ना। मैंने उसका नाम सीधा सीधा अपना कन्वर्ट किट में डाल दिया और ओके। ईमेल सीक्वेंस चालू हो गया। तो ऐसा करके आपको ईमेल एड्रेस लेना पर्सनली, ऑनलाइन। अच्छा, लिंक्डइन है सपोज, तो लिंक्डइन में आपने दोस्त बनाए, उसका हम्म। ईमेल एड्रेस लिया, जी। उसको आप बोले कि ओके you are writing about the content writing, so I am very much interested, I may know something about your writing and all. तो वो बोलेंगे आप क्या करते हैं? देन आई एम वर्किंग बट आई एम ऑल्सो राइटर, आई हैव रिटन वन बुक, जीरो टू हीरो। ओह हम्म। वेरी गुड। तो ये मेरी बुक की लिंक है, ऐसा करके आपने लिंक भेज दी। तो वो बोलेंगे कि यार ये तो सामान्य आदमी नहीं है यार, ये तो कोई राइटर है। बराबर। तो राइटर है ना, उसका एक इमेज है। कल एक सिंगापुर से कोई किसी ने मेरे को लिंक्डइन में कांटेक्ट किया, तो बोलते हैं कि हाउ मेनी बुक्स यू हैव रिटन। तो मैंने एक लिंक भेजी, उसमें तो 26 बुक्स है। तो उसको बोला ओ यू रिटन सो मेनी बुक्स, तो मेरा फ्रेंड हो गया। तो ना आई विल ट्राई टू कन्वर्ट देम इन रीडर। तो ऐसा हम्म। ऐसा करते 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 आपको रीडर का एक मतलब बहुत सारा ग्रुप मिल जाएगा। ओके। ओके। तो straight way now we'll jump into the automated email system. I will show you the system first. जी। So you pay attention for some time. जी। अच्छा, तो अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? जी। Okay. So I will log in to ConvertKit. The ConvertKit is a automated email system. अच्छा, जैसे Gmail है ऐसे ही ये ConvertKit है। ओके। बराबर। जैसे हर एक प्लेटफॉर्म है उस तरह का ये भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें with personalized emails you can send. Let me log in. अच्छा, इसके अंदर है ना, देखो ग्रो, सेंड, ऑटोमेट, अर्न एंड लर्न, ऐसा है। बराबर। तो हम्म। हम्म। फर्स्ट वन ग्रो, उसमें क्लिक किया ना तो चार चीजें आती है: सब्सक्राइबर्स, लैंडिंग पेज, क्रिएटर्स प्रोफाइल एंड रिकमेंडेशन। अच्छा, दूसरा जो सेंड है उसमें ब्रॉडकास्ट और सीक्वेंस, ईमेल टेम्पलेट एंड स्निपेट्स। फिर ऑटोमेशन, विजुअल ऑटोमेशन, रूल्स, इंटीग्रेशन एंड RSS। RSS मीन्स नॉट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो नहीं है। ये है रियली सिंपल सिंडिकेटर। ओके। उसका मतलब क्या है, उसको आपको मैं बताता हूँ कि मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ, ये मीडियम आर्टिकल जो आपको मिला ना, जी। वैसा आर्टिकल है ना। व्हेन आई एम राइटिंग, द मोमेंट आई पब्लिश, it will go to 1400 people automatically. हम्म। I don't touch my email system. ईमेल जाता है, कैसे ईमेल जाता है मैं आपको बताता तो ये जो मुझे व्हाट्सएप मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है? हूँ। नहीं, व्हाट्सएप तो अलग है, वो तो मैं हम्म। भेजता हूँ। देखो, ये नार्सिसम स्पेक्ट्रम फ्रॉम हेल्दी ईगो टू पैथोलॉजिकल ट्रेट्स, ये 1355 लोगों को
ऑटोमेटिक चला गया, बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, आई नेवर टच माय ईमेल सिस्टम, इट इज गोइंग टू 1400 पीपल एट ए टाइम पर्सनली, आई डोंट टच। मैं तो टीवी देख रहा हूँ घर में, वो अपने आप वो ईमेल जा रहा है, Hmm. बराबर। दिस सेव्स योर टाइम। तो Correct. ये चीजें सीखनी, Correct. बराबर। ओके, अभी जो ऑटोमेशन में क्लिक किया तो एक रूल्स आता है, इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, एक बुक फनल्स करके है, Hmm. एक टाइप फॉर्म करके है, तो उसमें आप जो डेटा फीड करते हैं ना, ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, Okay. तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, आपने कंप्यूटर सीखना और चलाना कब शुरू किया था अंदाज से, कौन सी साल में, फॉर एग्जांपल इन विच ईयर Nine- यू स्टार्ट? 97, 98 में। ओके, वेरी गुड। तो 97 में जब उस टाइम डोस नहीं था, उसमें विंडो आ गया था उस टाइम, Hmm. एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपको शायद, Correct. बराबर, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उसमें Correct. कमांड लिखनी होती है, बराबर। Correct. Correct. तो उसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। Hmm. इसके बाद मतलब विंडोज आया, विंडो 3.1 पहले आया था, इसके बाद मिलेनियम एडिशन और सब कुछ आया, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। तो उसमें ग्राफिक, अभी मेरे ग्रैंडफादर को मैंने एक बार बोला कि लंदन में एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने एक फोटो भेजा था, तो हंसने लगे कि यार ऐसे थोड़ा फोटो भेज सकते हैं वायर में, फोटो तो आपको पोस्ट करके मतलब डाक में भेजना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी भेजते हैं। लेकिन वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, Correct. इसके बाद मल्टीमीडिया यूजर इंटरफेस आया। तो आप एक वीडियो भेजना है तो किसी को भेज सकते हैं। अभी क्या है कि जो डायमंड का जो सेटअप है, उसके अंदर जब मैं कोई सेशन लेता हूँ तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं सीधा सीधा उसको सोम बातला को भेजता हूँ, तो वो अपना जो सिस्टम है उसके अंदर टीचेबल सिस्टम में उसको रख देते हैं और सभी मेंबर्स उसको देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल था, क्यों पॉसिबल हुआ? मल्टीमीडिया यूजर इंटरफेस, Correct. बराबर। Correct. अच्छा, अब एपीआई आया, बराबर। तो एपीआई से क्या होता है, ये इंटीग्रेशन। तो मतलब कि अ, आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम। अभी मैं बहुत सारे इंटीग्रेशन है, मैं कभी आपको बताऊंगा कि भाई जी। मेरा टीचेबल सिस्टम है, जैसे कि सोम बातला का टीचेबल सिस्टम है, ऐसा ही मेरा एक टीचेबल सिस्टम है। उसमें लोगों को मैं बैंक में कैसे एग्जाम देना है, मिलिट्री में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एग्जाम दे के कैसे करना है, तो उसका एक टीचेबल सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ। तो उसको मैंने ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम से लिंक कर दिया, उस ऑटोमेटिकली उससे ईमेल जाएगा आएगा, ये सब कुछ है। तो मतलब टोटल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक विजुअल ऑटोमेशन है। अच्छा, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, समटाइम्स इट में बी ओवरवेलमिंग कि भाई ये तो कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है, ऐसा भी होगा। लेकिन वन नहीं बाय सर, आई एम वन, एंजॉयिंग दिस। जा वन बाय वन यू विल कम टू नो एंड यू विल बी प्रैक्टिकली डूइंग दिस। जी जी जी। ओके, अच्छा। तो ये है, इसके बाद अर्न एंड लर्न है, उसके अंदर प्रोडक्ट, टिप जार्स, पे आउट वगैरह है, लेकिन ये अभी इंडिया में चालू नहीं हुआ है, ओके। यूएस वगैरह में है। लेकिन हो सकता है मतलब नियर फ्यूचर में आ जाए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, क्रिएटर्स यूनिवर्सिटी होगा, सब कुछ है। क्रिएटर्स यूनिवर्सिटी ऐसा टाइप का है कि जो क्रिएटर्स लोग हैं ना इकट्ठा होते हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं, 20-30 होंगे, तो एक दूसरे के आइडिया से हम लोग सीखते हैं। अच्छा, बेसिक इसका बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये सब्सक्राइबर्स है और लैंडिंग पेज है,
इसके अंदर लैंडिंग पेज में अभी जो आपको बताया कि भाई कोई किसी का ईमेल आया, नाम लिखा, तो सीधा सीधा इसके अंदर आ जाता है, तो उस लैंडिंग पेज के थ्रू आता है। लैंडिंग जी पेज इज नथिंग बट ए वेब पेज। उसके अंदर ईमेल एड्रेस वगैरह डाला और सीधा सीधा वो अपने ईमेल एड्रेस में सेव हो जाता है, ठीक और है। लोगों का हम लोग ईमेल एड्रेस लोगों से लेते हैं। अच्छा, जो सब्सक्राइबर है उसमें मैन्युअली हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा सब्सक्राइबर्स लिस्ट है, बराबर। ये सभी 1388, ये सब पूरा सब्सक्राइबर फॉरेन का, इंडिया का, सबका है, मतलब कि ये सब है। अच्छा, ये जो रैंडमली है ना, उसका सबको मैंने टैग दे के रखा हुआ। टैग मतलब फॉर एग्जांपल बैंकर्स, तो बैंकर्स में हम्म। मेरे सभी चीफ मैनेजर होगा उसमें, कोई क्लार्क भी होगा, कोई दूसरा भी होगा, सभी उसके अंदर बैंक है। तो मैं बैंक वालों को कभी ईमेल भेजना है, तो मैं सीधा ईमेल टैग बैंक क्लिक करूंगा, तो सीधा उसको बैंकर्स, जैसे 40-50 बैंकर्स है उसको ही जाएगा, सबको नहीं हम्म। जाएगा। हम्म। तो जैसे कोई रीडर्स है कि भाई मेरे को ये यूएस का रीडर्स है उसको भेजना है, तो ट्रेसी है, रोजिना है, स्टीव है, रोबोट है, वो उसका एक यूएस का लिस्ट है। तो मैं सिर्फ कोई किताब लिखा और यूएस में भेजना है, तो मैं सीधा सीधा उसको एक ईमेल भेजता हूँ और उसमें टैग करता हूँ यूएसए, तो सीधा सीधा उसको ही जाएगा, इंडिया में किसी को नहीं जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, उसको आप मैसेज भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो सीधा सीधा, और सबको नहीं, मतलब स्पेसिफिक लोगों को ही। सो दैट इज कॉल्ड टैगिंग, हम्म। बराबर। तो टैगिंग दो तरीके से होता है, एक तो मैन्युअली कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक भी होता है। जी। अच्छा, तो ये भी चीज चीज सीखना है। अच्छा, लेकिन एक नॉर्मल चीज आपको ब्रॉडकास्ट पहले दिखाते हैं कि व्हाट इज ठीक है। ब्रॉडकास्ट। तो ये सेंड के अंदर एक ब्रॉडकास्ट। करेक्ट। तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं ना, कि जी भाई जी। 15-20 आदमी, 50 आदमी का, तो सीधा सीधा ग्रुप में सब मैसेज वगैरह जाता है। तो उसमें एक व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्टिंग होता है, आपको मालूम होगा। आपने सपोज यू हैव मेड वन ग्रुप, उसमें ब्रॉडकास्ट का नाम कुछ दे दिया और उसमें सबको आप ऐड कर दिया, और उसमें एक सिंगल क्लिक से आपको 200-250 लोगों को सीधा भेज सकते। ओके। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। लेकिन वो व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट, हम्म। सेम काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट इज अवेलेबल इन कन्वर्ट, बराबर। तो कन्वर्ट किट में फॉर एग्जांपल मैं न्यू ब्रॉडकास्ट में गया, राइट साइड में एक न्यू करके, जी। बराबर। ये सीधा सीधा पहली बार कोई कोई चीज समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको लिंक भेजूंगा, तो यू कैन सी लेटर ऑन रिकॉर्डिंग। अच्छा, ब्रॉडकास्ट खोला, दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक योर नॉर्मल ईमेल। ठीक है। आपने जीमेल में गए, आपको किसी को ईमेल भेजना है, तो उसमें लिखेंगे डियर सो एंड सो, इसके बाद आप टाइप करेंगे जो भी कुछ है, टाइप करके टाइपिंग कर दिया, और हम्म। सीधा राइट साइड में कंटिन्यू सेंड, दैट्स ऑल, ये चला गया। करेक्ट। ये जस्ट लाइक नॉर्मल ईमेल, और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये इसके अंदर जो अभी बताया ना कि जैसे टेम्पलेट होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक टेम्पलेट में जाता हूँ, और टेम्पलेट में मैं सपोज आई सिलेक्ट वन टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट मैंने बनाए हैं। ये टेम्पलेट वाला कहाँ से आया सर? ये इसके अंदर में है, बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ओके। मैंने ये टेम्पलेट सिलेक्ट किया, तो ये टेम्पलेट आ गया, बराबर। अच्छा, तो टेम्पलेट कहाँ से आया? तो ये इधर जो ऑटोमेशन है, इसके अंदर जैसे ओके। विजुअल इंटीग्रेशन, आरएसएस रूल्स वगैरह है ना, इसी तरह हम्म। से ये स्टैंड में सीक्वेंस, ब्रॉडकास्ट, ईमेल टेम्पलेट्स और स्निपेट्स। हम्म। स्निपेट स्निपेट है ना, बहुत
बहुत जरूरी, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ठीक है। ये ईमेल टेम्पलेट है ना, मैं पहले अच्छा, ईमेल टेम्पलेट, ठीक बना के रखा। सिर्फ उसमें किसी को भेजना है तो सिलेक्ट करके इधर रखो, दैट्स ऑल। बराबर, ओके। अभी ये टेम्पलेट आ गया। अभी इधर कुछ नहीं लिखा है, बराबर। तो आई विल बी राइटिंग समथिंग हियर। तो मैं इधर लिखता हूँ डियर। अभी मैं इधर डियर राहुल लिख सकता हूँ, बराबर। डियर करेक्ट। महेश लिख सकता हूँ, डियर कमलेश लिख सकता हूँ। बट आई विल नॉट राइट नेम। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक हियर। इधर से पर्सनलाइज करूंगा, इसमें एड नेम, ये क्लिक किया, बराबर। तो इसमें कुछ नहीं आया, लिखा हुआ फर्स्ट, मतलब सब्सक्राइबर डॉट फर्स्ट नेम, हम्म बराबर। हम्म इसके बाद मैं ईमेल लिखूंगा जो भी है, कि हाउ आर यू, ये सब कुछ लिखूंगा पूरा ईमेल का। आई हैव बीन राइटिंग emails to my friends, ये जो भी मतलब ये पूरा पूरा ईमेल जो भी लिखा है, बराबर। अच्छा, अभी इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इधर राइट साइड में कंटिन्यू है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा। आई विल राइट कोई भी सब्जेक्ट लिख दिया, हाउ इज लाइक ऐसा लिख दिया, बराबर। मैं कंटिन्यू किया। तो इसमें लिखा हुआ आएगा कि सेंड ईमेल, पब्लिश टू वेब, दो ऑप्शन। लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ। आई विल सी द प्रीव्यू। अच्छा, प्रीव्यू किया। तो अभी सपोज मैं इसको AR गोस्वामी @gmail.com ये सिलेक्ट किया, बराबर। अभी इस क्या चेंज आया, डियर KR गोस्वामी, बराबर। हम्म अच्छा, अभी मैं लिखता हूँ कोई दूसरा किसी का नाम, सिलेक्ट किया। अभी ये लिख के आया डियर डॉक्टर रविंद्र डे, जी। बराबर। तो ये ईमेल जब मैं शूट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ईमेल ब्लास्ट जाएगा 1400 या जो भी 2-3 हजार जो लोग हैं मेरे पास, उसमें सीधा जाएगा और उसको बाय नेम मिलेगा। when you will get your email, you will write that dear Rahul, it will be written। करेक्ट। रविंदर को मिलेगा तो डियर रविंदर। तो दिस विल बी ए स्पेसिफिक ईमेल और स्पेशलाइज्ड ईमेल। उसका उसका जो डेटा है ना, वो मेरे डेटाबेस से लेके उसके अंदर आएगा। ओके। सो दिस इज पर्सनलाइज्ड ईमेल। हम्म तो ये पर्सनलाइज्ड ईमेल और ये नॉर्मल ईमेल में फर्क क्या है, कि जो नॉर्मल ईमेल है ना, वो उसको 10 आदमी को लिखना है तो 10 का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर करेक्ट, अलग आपको, अलग। या कॉपी, या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी उसमें आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन हम्म उसमें मैटर है वो सेम रहेगी, इसके अंदर मैटर है ना अलग अलग। करेक्ट। इवन पिक्चर्स यू कैन चेंज। मैं एक आपको एक एग्जांपल दूंगा।
अच्छा, तो भी देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, बराबर। इधर कुछ लिखा है प्लान द डे एंड एलिवेट योर लाइफ, और इधर लिखा है कि आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन सब्जेक्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, बराबर। तो ये सीधा सीधा जाता है, मैं उसको टच नहीं करता हूँ, एक ही बार टाइप कर लिया है। और ये हम्म। आपको मिलेगा ये प्लान द डे एंड एलिवेट योर लाइफ, ये मीडियम में आर्टिकल है, सीधा सीधा आपको मिलेगा। ओके। लेकिन जब नेक्स्ट आर्टिकल में लिखूंगा, सपोज कल लिखूंगा, तो ये चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, अच्छा। आर्टिकल का नाम बदल जाएगा, बराबर, डेट बदल जाएगी, ऑटोमेटिक ये सब कुछ हो जाएगा, और सीधा सीधा दूसरा आर्टिकल मिलेगा, तीसरा लिखा तो वो आएगा। तो मेरे को भेजने का जरूरत नहीं है एवरी टाइम, ऑटोमेटिकली इट विल गो, बराबर। तो मतलब कहने का क्या है कि ये जो ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट दो तरीके से होगा। ब्रॉडकास्ट मतलब नथिंग बट ईमेल यू आर सेंडिंग टू योर रीडर और योर सब्सक्राइबर। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ब्रॉडकास्ट दो तरीके का होता है, एक तो सीधा सीधा भेजोगे, बराबर, और एक दूसरा, सपोज आफ्टर 10 days यू आर लॉन्चिंग योर सेकंड बुक, और आपके पास 200 लोग हैं आपकी कन्वर्ट बुक में या ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम, तो लिखोगे कि भाई 25 तारीख को, 25 अप्रैल शाम को 7 बजे ये ईमेल जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। तो आपने लिख दिया, सेंड भी कर दिया, लेकिन उसको कब मिलेगा? ऑन 25 अप्रैल, जो आपने ओके। डिसाइड किया कि इसी तारीख को इतने बजे मिलना चाहिए। तो दैट ईमेल जो आपने भेजा है वो तुरंत जाता है उसको, मतलब सीधा सीधा भेज सकते हैं, लेकिन शेड्यूल ईमेल भी आप भेज सकते हैं, बराबर। अच्छा, तो दूसरा कि सपोज आपको मैंने ईमेल भेजा, बराबर, और आपने उसको खोला, मेरे को इधर तुरंत पता चल जाए, अच्छा। या आपने, मैं किताब जो है उसका लिंक भेजा है, उसमें आपने क्लिक किया है कि नहीं किया है, मेरे को तुरंत पता चल जाएगा, बराबर। तो ऐसी सिस्टम है ये, और ये सिस्टम हम लोग सीखेंगे बाद, ठीक है। हम लोग बाद में एएमएस एड्स और बुक बबेट सब कुछ सीखेंगे, लेकिन ये जो इसका जो बेसिक है ना वो बहुत सीखना जरूरी है। जी तो जी बिल्कुल। हाँ, तो उस इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे जीमेल वगैरह में रजिस्टर करते हैं, उसमें ऐसा भी इसमें भी रजिस्टर कर, ठीक है। तो उसमें मतलब कि नेम और ईमेल एड्रेस ये वो सब कुछ डाल के उसमें 5 मिनट का काम है, वो सीधे सीधा हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन ये फ्री है, अप टू 300 ईमेल्स, ओके। जब जब तक आपके पास 300 रीडर्स का लिस्ट हो जाएगा तब तक फ्री है। इसके बाद आप उसको अगर सब्सक्राइब करेंगे, मतलब कि $20 या $10 जो भी पर मंथ है, उसको आप पे करेंगे तो ही आपको आगे लेके जाएगा, नहीं तो वो उसका मोटा फेल हो जाएगा कमाने का, कन्वर्ट किट हम्म। वाले का, बराबर। फ्री में है तो मतलब 300 तक जब तक मतलब फैसिलिटी है तो आपको फ्री में मिलती है। तो जब जैसे रजिस्टर करेंगे ना, तो आपका एक ईमेल एड्रेस मांगेगा, वो ईमेल एड्रेस में आपको कंफर्म करना है, वो कंफर्म ठीक है। करेंगे, इसके बाद सीधे सीधे चालू हो जाएगा, बराबर। अच्छा, डन। तो ये मतलब कि आपका जो ईमेल लिस्ट होगा ना, वो इट विल नॉट बी ओवरनाइट, बराबर। आपको रोज एक दो मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐड किया, ऐसे कैसे कैसे मैन्युअली ऐड करना है, कैसे लिस्ट एक साथ एक्सट्रैक्ट करके डालना है, दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे लाना है, वो सब सिस्टम है, आप हम लोग करेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन में एक बार कंफर्म हो जाएगा कि ईमेल एड्रेस से, इसके बाद आपको यू कैन स्टार्ट इंपोर्टिंग ईमेल एड्रेसेस, आप उसमें सेव कर सकते हैं, और उसको हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको प्रैक्टिकली कैसे ईमेल ऐड करना है,
कैसे ईमेल ब्रॉडकास्ट करना है वो हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो कन्वर्ट का जो प्लेटफॉर्म है ना, जी। वो एक्चुअली यूएसए का है। मैं आपको चैट बॉक्स में एक लिंक भेजता हूँ, सीधा सीधा आप रजिस्टर कर सकते हैं। और उसमें आप क्लिक करो, देखो तो चैट बॉक्स में वही लिखा है। तो कन्वर्ट किट की स्क्रीन खुली, कुछ खुला? हाँ, मैंने ओपन किया, कर रहा हूँ सर। ओके ओके। तो हाँ, आ गया सर, आ गया। अच्छा, एक मिनट, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? देखो नीचे एक ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, हाँ, शेयर द स्क्रीन, उसमें क्लिक करो। एंटायर स्क्रीन है हाँ, ना, एंटायर स्क्रीन कर दो। लेकिन उसमें शेयर का वो आ रहा है, एनेबल नहीं है। मैं कर दिया, अभी आपको होस्ट बनाए, आएगा। लेकिन वो शेयर का एनेबल नहीं आ रहा सर। हाँ, एक मिनट, मैं फिर से आपको, आई हैव गिवन द परमिशन। अभी आप शेयर स्क्रीन में एक बार क्लिक करो, और इसके बाद हमारा जो जूम स्क्रीन है ना, उसमें क्लिक करो एक बार। जो हमारा दोनों का फेस दिखाई दे रहा है, उधर क्लिक करो। हाँ, क्लिक कर दिया। हाँ, अभी अभी आप जो वो स्क्रीन है ना, उसको खोलो, जो आप कन्वर्ट किट वाला। कन्वर्ट किट वाला हाँ, दिख रहा सामने है सर है? आपको? नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ। शेयर द स्क्रीन में एक हाँ, बार क्लिक करो फिर से। लेकिन वो शेयर वाला एनेबल ही नहीं आ रहा सर, वो उसको मैं क्लिक ही नहीं कर पा, कैंसिल का आ रहा है बस। एक मिनट, तो मैंने अगेन आई विल मेक यू, ये नाउ आ यू रहा है, आर, हाँ यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है, अभी करो, अब है ना? अभी ये स्क्रीन आई। अभी इसमें आपको दिख साइन रहा अप फ्री, साइन अप फ्री, उसमें जाओ। है? ये शायद सर मैंने एक बार ना इसको शायद किया था, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा शायद ये। अच्छा, देखते हैं। आर यू रोबोट ओके। कन्वर्ट किन मुझे शायद याद है, मैंने एक बार हाँ किया हुआ है, मतलब एक बार बस मैंने रजिस्टर तो किया था हाँ, तो शायद। वो किया होगा ना, तो उसमें वो 14 दिन के बाद एक्सपायर हो गया होगा। तो आपको कोई हम्म। दूसरा ईमेल आईडी यूज करते हो इसके अलावा? कोई भी ईमेल आईडी चलेगा इसमें। सर यही है मेरे पास एक। अच्छा, इसमें क्रिएट अकाउंट करना है। हाँ, क्रिएट अकाउंट, क्योंकि नया अकाउंट बनाना है, वो इट विल टेक 1 or 2 minutes। यस, ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, तो लॉगिन करके देखूं सर? हाँ, लॉग इन करके देखो, लेकिन वो 14 days के बाद इनेबल शायद नहीं करने देगा। लेकिन इसमें मेरे कोई पासवर्ड ध्यान नहीं है, पता नहीं, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड करके देखता हूँ सर। हम्म,
ये जीमेल में है ना एक स्पेशल रजिस्टर कर सकता हूँ ईमेल, जिसको ये मेरा सर वेलकम बैक, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए अलग से बना लो तो भी अच्छा है, क्योंकि रूटीन में जो होगा उससे अलग हो जाएगा वो। सर ये वाली स्क्रीन मेरी दिख रही है अभी आपको? नहीं, इसमें वो नहीं दिख रही है, क्योंकि हाँ अभी दिख रही है। हाँ। वेलकम बैक। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको पेमेंट के लिए पूछ रहा है। तो हाँ मतलब वो 14 डेज वाला वो है ना, पहले वाला आपका, तो ये इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन में अभी करना है, मतलब जी। पेमेंट कुछ नहीं करनी है। और तो ये मतलब फ्री वाले में करना है। ये अ, वाला हाँ फ्री में। डाउनग्रेड आ रहा है फिर। अच्छा है ना, नेवर माइंड में क्लिक करो लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो ये ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर लिया ना, तो इसलिए आपको सीधा सीधा 14 डेज के बाद वो करना नहीं देगा। अच्छा। तो एक काम कर सकते हैं, आपको दूसरा ईमेल आईडी नहीं है? दूसरा ईमेल आईडी अभी तो नहीं है सर। अच्छा, एक क्रिएट कर लेना और उसको ओके। स्पेशली इसी के लिए ही रखना। ठीक है। और शुरू से ही उसको मतलब चालू रखना, तो आपको 300 सब्सक्राइबर तक ये अभी तो देखो 1000 सब्सक्राइबर है फ्री में, लेफ्ट साइड में लिखा है ना, हाँ हाँ। फ्री अप टू 1000 सब्सक्राइबर। तो जी। 1000 तो वो 1 साल तक आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब पेमेंट पेमेंट। तो अभी इसमें लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहा सर मैं? इसमें वो 14 डेज स्टार्टिंग में किया होगा ना आपने, वो एक्सपायर हो गया, मतलब 14 डेज हो गया, तो इसलिए अभी पेमेंट से ही करने देगा ऐसा लग रहा है। तो जो नए नए ईमेल आईडी में फिर वो फिर से 14 डेज के लिए रहेगा? नहीं, नया ईमेल आईडी होगा ना आपका, तो उसके अंदर हम्म। आप जब फ्री लॉगिन में करेंगे तो इसके बाद वो चलेगा। ये इसमें काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, तभी इसमें ये लोगों का पॉलिसी होता है कि भाई पेमेंट के बिना करने नहीं देंगे। तो इसको भी रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर पेमेंट करना पड़ेगा आपको। हम्म। तो इससे अच्छा है कि वो फ्री में ही करें ये अभी से। डाउनग्रेड टू फ्री प्लान करूं सर एक बार? हाँ करो, देखते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड, कैन ईमेल मोर, मैनेज योर ईमेल एड्रेसेस, शेयर द लैंडिंग पेज, ग्रो योर लिस्ट। इसमें दो चार स्टेप होंगे। राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर है ना जो मैनेज ईमेल एड्रेसेस, उसमें क्लिक करो। इसमें वही। है ना, आपको ईमेल एड्रेस में जाके कंफर्म करना पड़ेगा तो एक बार। ईमेल एड्रेस में? हाँ देखो, ये इधर रीसेंड में एक बार क्लिक करो, बराबर। अभी आपको ईमेल में देखो एक ईमेल आया होगा, उधर से एक बार कंफर्म करो। ईमेल आया सर, मैंने क्लिक किया है सर उस पर। कर दिया ना? हाँ तो अभी, ईमेल हैज बीन कंफर्म्ड, अब हो गया, हाँ जी। हाँ अभी जो राइट साइड में डिफॉल्ट लिखा है इधर, उसमें क्लिक करो। हाँ देखो कंफर्म हो गया, बराबर। नाउ जी। आप ग्रो में ऊपर क्लिक करो लेफ्ट साइड में, सब्सक्राइबर्स, बराबर। अभी आपके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, रीडर नहीं है, बराबर। जी। गो टू एड सब्सक्राइबर्स, राइट साइड टॉप। अच्छा, और क्रिएट टैग, उसमें क्लिक करो। अच्छा, एड
सिंगल सब्सक्राइबर, बराबर। इसमें लिखो ऊपर फर्स्ट नेम में KR गोस्वामी, ईमेल एड्रेस में लिखो कांतिगिरी @krgoswami.com। ओके, स्पेलिंग ठीक है सर? हाँ ठीक है, ओके। और अभी नीचे टैग में जाओ। अच्छा, टैग होगा नहीं, क्लिक करो टैग में, टैग है नहीं। one minute, एक काम करो, राइट साइड में इसको भी छोड़ दो, राइट साइड में गो टू टैग, क्रिएट टैग, ओके, उसमें लिखो फ्रेंड, सेव। ओके, अभी ऐड करो राइट साइड में, ऐड ऐड, सब्सक्राइब, ऐड सब्सक्राइबर। अभी लिखो फिर से KR गोस्वामी, कांतिगिरी @krgoswami.com। और अभी नीचे टैग में क्लिक करो, तो टैग में फ्रेंड में टिक करो एंड सेव। अभी नीचे जाओ, नीचे और, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट 1 सब्सक्राइबर। थैंक यू सर। तो ऐसी तरह से आपको जो जो आपके जीमेल वगैरह में है ना, उसको, जी, या फ्रेंड्स का, उसको, इस सबको ऐड करना है अभी, मतलब जब भी ओके, टाइम मिले। तो नेक्स्ट जो थर्सडे को मिलेंगे ना, तब तक कम जी, से कम 8 से 10 उसमें ऐड कर दे, ओके, बराबर। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि एक्सेल लिस्ट से CSV फाइल से कैसे इसको इंपोर्ट करना है, बराबर। तो ऐसे ऐड करते रहना। और वो जो नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग 7 बजे मिलेंगे, उसके अंदर आपको कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं वो बताऊंगा, और कैसे लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं वो बताऊंगा, दूसरे प्लेटफॉर्म से या एक्सेल शीट से, ओके। बराबर। तो ये 8 से 10 आदमी को ऐड करना, ये आपका लेसन रहेगा। तो इसमें बस मुझे ऐड ऐड सब्सक्राइबर करना है, हाँ ऐड अ सिंगल सब्सक्राइबर, फिर यहाँ पे नाम करके सेव कर देना उसको अपने हाँ, यहाँ पे। और उसमें आपको है ना, क्रिएट टैग में 2-3 टैग बनाना है कि भाई अच्छा, जैसे किस टाइप का टैग होगा, बैंकर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रीडर्स, ऐसा 4-5 टैग बना लेना। ठीक है, और जब ऐड करेंगे ना, तो कोई रीडर है तो उसमें डालना है, बैंकर है तो उसमें डालना है, फ्रेंड है तो उसमें, रिलेटिव है तो उसमें, बराबर। ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, विल मीट अगेन ऑन थर्सडे। ओके, ओके सर, ओके। चलो, सर बाय। अगर ये वैसे मुझे पूछना था, ये अगर कोई बुक का अगर आप एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसका क्या चार्ज लेते हैं सर? मैं जो बुक कवर बनाता हूँ ना, उसका मतलब फाइवर में मैं 1500 रुपये रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन हमारा जो FH कम्युनिटी है ना, वो 1000 रुपये में बना देता हूँ कवर। और जो इसकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग होती है सर, वो? एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी करता हूँ, लेकिन वो मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, मतलब ओके, वो करके ऐसे देता हूँ। लेकिन सबका नहीं करता हूँ, वो बोलता हूँ कि हायर कर लो किसी को, वो लोग जनरली ये सूरज वगैरह करते हैं, जी, चार्ज के साथ करते हैं। लेकिन मैं है ना, आपको बताऊंगा आप हाउ इजीली यू कैन डू एडिटिंग, हाउ इजीली यू कैन फॉर्मेट योर बुक, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। एक एक दो बार करोगे ना, तो इसके बाद आपको किसी को
कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर पाए। ठीक है, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो आप किसी को देना है तो दे सकते हैं, या मैं भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। मतलब आपको ये स्किल है ना, एक बार सीखनी पड़ेगी। और ये एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार ये मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ अभी। आई हाँ, एम वो बड़ा अच्छा लगता है सर। हाँ, हाँ, करेक्ट सर। आई एम डूइंग माई सेल्फ। तो एक जैसे फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और बुक कवर कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सब कर पाएंगे आप बात। ओके, डन, डन सर, चलो, डन। बाय, मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।